So, good evening, friends. I am Dr. Liaquat. I welcome you all on behalf of Promise Alone Homeopathic Forum. This today is our 20th session, and I am so happy and honored that Dr. Amrijit Singh Man, uh, more known as AS Man Sir, is the speaker for today. He is the faculty for today. And I tell you, friends, besides my principal, Dr. Motiwala Sir, there are hardly some 5-10 doctors by which I am deeply impressed and whom I listen and I follow to. Dr. Mansar is one of them. I consider him as my elder brother always. And I'm so honored to introduce Sir every time. I'll speak a few words about Sir. Actually, Sir did pharmacy, B pharmacy, and then he was working as a pharmacist. But when working, he used to listen to homeopathic lectures, and by listening to the lectures, he understood ki, "Arey, my God, what I'm doing is not right." So, Sir took left the government job as a pharmacist, and then joined DHMS college, and then did his DHMS, and then joined government, and he was a medical officer by government of Punjab. And during his DHMS tenure, Sir was not quiet student like just studying and all. Sir was actively involved in the students' movement. Okay, he did the longest strike in the history of homeopathy of India for some issues, and then when his friend became the MCH member, then that issue was solved. Along with that, please remember, he was not only an activist, but I tell you, Sir was university topper during DHMS. Okay, please remember, matlab he was a studious man, studious boy, as well as a union leader. And then after completing his DHMS, Sir joined government services. And then he left government services and started his private practice. Along with his private practice, Sir has adopted the school for deaf and dumb and mentally retarded children. Sir has he attended all the seminars by Saigal sir in Punjab and Delhi, and in Punjab, Sir used to arrange Dr. Saigal seminars. Okay, and then Sir is in Mind Method since 1990. Since 1990, Sir is totally practicing Mind Method. Sir has written, he is the co-author of the book Homeopathy and Mind. Sir is the editor of Homeopathic Journal, Homeopathic Community Journal. Then after that, it is the world of e-education. So Sir's ASRH group, Sir started ASRH group of Mind Method on WhatsApp first, and then shifted to Telegram. And totally, if you see the ASRH group, it is running so well, and he's handling that group. He is so senior, but I have seen a man with no ego. If I tell you frankly, no flattery, I am so fond of Sir. I really wished to see him as Chief Minister of Punjab. I was really wishing to see Sir as Chief Minister of Punjab, but then he is not a fit person for politics. Sir is a person for social work. I tell you, I remember Sir's work on alcohol. Okay, because Punjab was every village. There used to be so many alcoholics in Punjab, and Sir's work against alcoholism in Punjab. He was one of the top persons who did that. If you just go and see 4 or 5 years back, on in every newspaper, in every television, you will see Sir strikes and his agitations against the alcoholism in Punjab and other drugs. So he has social belonging. He has everything. So for me, I don't know what is Sir's constitution, but for me, Sir is the causticum of homeopathy. I always call him causticum of homeopathy. So I am, without wasting more time, I would request Man Sir to enrich us, enlighten us
with his knowledge. And I have seen sir's combinations of rubrics so simple, so simple. 2 rubrics combination, 3 rubrics combination. I'm sure you will watch his video again and again. Today's lecture, you will watch again and again. So without wasting more time, I would request on behalf of PHF, sir is also the mentor of PHF. So I would request sir to really make this Guru of Guru a really memorable. Sir, please continue, sir. The whole stage is yours, sir. Please start. Sir, you are mute. Unmute कर दिया था. Yes, sir. Thanks of PHF group and thanks of Dr. Nambole sir. Spoken so much about me. I don't deserve such words. I think I am like you, as you all are so hard working. Dr. Sir Nambole sir himself cured so many chronic fatal cases easily with easy prescription. I was lucky to work with our guru, our master, Dr. M.L. Sehgal. I first attended his seminar in November 92. I myself raised question and objected. I do not believe such results with belladonna. Sir sold 5 cases at Chandigarh, all of belladonna, and declared that 30 to 40% cases only belladonna covers. But when I purchased the original literature of Dr. M.L. Sehgal sir, ROH 1, 2, I studied and noted that the basic of Dr. Sehgal theory is to prescribe on most common wording of the patient. Convert that common wording of the patient into mind rubrics and prescribe. So I was in government homeopathic dispensary at Turi, and I first prescribed opium to a girl to whom I had given all medicines and all intercurrent medicines, all miasmatic medicines, no relief. She said, I was taking medicine from so long time, no result, sir. So I gave her opium 30 single dose. After 7 days, she reported that I have no attack of asthma. I never took inhaler, and I am surprised to see results this week. Then my son, now he is a 38-year-old and homeopathy doctor. He always still laughing, smiling, frivolous, light. तो उसको फीवर हुआ तो मैंने उसको बेलाडोना दी, वो मिरेकुलस रिजल्ट मिले बेलाडोना से. तो फिर मैंने गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में भी, और उस समय हमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता था, तो वहां से 15 किलोमीटर है संगरूर जहां मेरा रेजिडेंस था, वहां प्रैक्टिस करते थे प्राइवेट. सभी पेशेंट्स को मैंने मतलब अपना साइकिल सिस्टम पे डाल दिया. बहुत सारे डॉक्टर मेरे को कहते थे कि आप ऐसे ना करो, फेल हो जाएंगे. मैंने बोला कि अगर फेल होंगे फिर ही हम ट्राई करेंगे. अगर हम इजी वे से बहुत सारे पेशेंट को ओल्ड वे से देते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. तो ऐसे हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, और फिर 6 साल के लिए हम उनको भी हमारे गुरु ही मानते हैं, टीचर तो हैं ही. 6 साल के लिए डॉक्टर संजय सहगल सर, डॉक्टर जुगेश सहगल सर 1 से संगरूर में आते रहे. हम पूरे पंजाब से 50-60 डॉक्टर्स इकट्ठे होते थे संगरूर में और लगातार स्टडी करते रहे. तो जो उनमें से निकाला हमने, जो जीस्ट निकाला, जो सेंट्रल पॉइंट्स निकाले, जो किंग पे निकाले, हम अभी भी डॉक्टर्स पंजाब के जितने भी हैं, ASRH के फाउंडर मेंबर चाहे जो, वो सभी अभी भी हम बात करते हैं कि 80% केसेस हम उन मेडिसिन से ही 20-25 मेडिसिन से निकालते हैं. जो केस नहीं निकलते फिर हम उनको जो एट प्रेजेंट रूब्रिक बनते हैं उसको रिपोर्टराइज करते हैं
और वो जो भी मेडिसिन आती है 3P पे, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग, परसिस्टिंग, तो हम वो मेडिसिन देते हैं। पर हमारी जो बेसिक मेडिसिन हैं बेलाडोना से शुरू होकर, वो हम सभी प्रेस्क्राइब वैसे ही करते हैं। डायरेक्ट हम पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करते हैं, डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम आराम से बैठे रहेंगे, बोलो बोलो बोलो, तो वो क्या बोलेगा? उसको क्या पता है कि हमें पछतावा दसना बताना है कि रिपेंटेंस है या नहीं, म्यूजिक है लाइकिंग या नहीं। तो पहले पेशेंट लाफ्स एट अस कि हमें सेकंड चीज है, हमें जॉइंट पेन है, और आप पूछ रहे हैं कि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है या म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। पर हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन मेडिसिन से, वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। आज भी मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ, ओपीडी में 70-80 की ओपीडी है, तो उसमें रियली 25-30% केसेस बेलाडोना के होते हैं। कई बार तो पूरी फैमिली ही अगर देखे, फर्स्ट टाइम आए, वो किसी ने बोला कि आप होम्योपैथी ले लो, डॉक्टर मान से ले लो, विश्वास कर लिया, क्रेडुलस है, नाइव है, सुपरटिशियस है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, कोई टेस्ट कराना है, सर के नहीं जरूरत है, लाइट जार है, तो बेलाडोना पूरी फैमिली को, और पूरी फैमिली डॉक्टर नमोले सर नेक्स्ट वीक इम्प्रूव की होती है। जो भी क्रॉनिक, तो क्रॉनिक डिजीज है उनकी, एक्यूट है, तो ऐसी जो दूसरी मेडिसिन है, ओपियम है, सिट्रामोनियम है, हाउसेम्स है, जेल्सीमियम है, इग्नेशिया, नेट्रेम्यूर है, नॉक्स वोमिका है, आर्सेनिक है, पल्साटिला है, ये सभी इतना काम करती हैं। जो हमें सेंट्रल थीम उनके निकाले हैं, अलमीना है, एंटम क्रूड है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए आप इन पे डिपेंड करके इनको पक्का कर लें मेडिसिन को, कि जो 25-30 मेडिसिन हैं और स्मॉल मेडिसिन हैं 25, तो आप प्रैक्टिस में 80% सक्सेस हो जाएंगे। तो 20% केसेस में आप जो कर लेंगे, रिपार्टराइज कर लेंगे। जो भी प्रेजेंट रूब्रिक आप बना पाते हो तो अपना आर्ट है ना, अगर बना भी पाते हैं राइट रूब्रिक या नहीं। तो मैं बोल रहा था कि आज डॉक्टर मानसी पाटिल से कि हम क्रॉकस एंटम क्रूड ही करेंगे, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर नमोले सर एंड टीम के बेलाडोना से रिजल्ट मिलते हैं, ओपियम से मिलते हैं, क्रॉकस मेरे पास 3-4 केस हर रोज आते हैं क्रॉकस टाइवा के, और इतना इजी है। हम डायरेक्ट पूछते हैं कि गुस्सा कितना आता है? सर गुस्सा तो बहुत आता है। फिर पछतावा आता है? हाँ जी पछतावा आता है। पछतावा कितनी देर में आता है? क्या क्विक आता है, जल्दी आता है, छेती 5, 10, 15 मिनट में, जहाँ आधे घंटे 1 घंटे बाद? सर नाल दी नाल साथ ही उसी समय पछतावा आता है। तो म्यूजिक कितना अच्छा लगता है? सर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या साथ में गुनगुनाते हैं? हाँ सर मैं साथ में गुनगुनाती भी हूँ जब म्यूजिक सुनती हूँ। तो इतनी शॉर्ट स्टोरी में 2-3 मिनट में इतना अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई भी हम वी ट्रीट द ह्यूमन बीइंग, नेवर नॉट द डिजीज। सो डिजीज कोई भी हो उसकी बात उसकी नहीं है, केस कैसा भी हो उसकी बात नहीं है। पर जब आप एंगर अल्टरनेट, क्विक रिपेंटेंस और म्यूजिक टू मच लाइकिंग देखते हैं, तो क्रॉकस टाइवा के इतने रिजल्ट मिलते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि इतनी शॉर्ट में केस की थी, इतने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, और वो केस कैसे निकल गया। बहुत क्रॉनिक केसेस भी ओसीडी में है, ओसीडी के है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कोई मैनिया है, कोई मतलब अस्थमेटिक है, सेकंड चीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ भी है। तो उसके इतने अच्छे रूब्रिक हैं। अगर आप दोबारा सेकंड टाइम रिपीट करें, पहले भी करवाई है क्रॉकस, एंगर अल्टरनेट रिपेंटेंस क्विक है ही है। दूसरा उसका है चीयरफुल म्यूजिक फॉर्म, सिंगुलर है। म्यूजिक एमिलियोरेशन, मेमोरी एक्टिव बार म्यूजिक सिंगुलर है। सिंगिंग इनवॉलंटरली
ऑन हीयरिंग ए सिंगल नोट सॉन्ग, तो वो साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर देना। बहुत गाने याद रह जाने, किसी पार्टी में किसी क्लास में सुनाना है तो वो मेमोरी एक्टिव है उसकी। तो व्हेन वी आस्क द पेशेंट वेदर शी फील्स एंग्री, she replies in affirmative. She admits that she burst out, even beat the children, but then repents quickly. In quick repentance, sulfur and crocus got together. But when we talk of music, there are so many rubrics I read above which are opposite in both medicines. This patient enjoys music. His memory is sharp for music, starts joining singing along with songs, and we prescribe crocus and we get so good results. जैसे मैंने 2 केस दिए हुए हैं, on the basis of these rubrics many chronic cases have been cured. A chronic case of diabetes mellitus was cured with a single dose of crocus sativa 30. An old man of 55 years felt quick repentance after anger and starts singing involuntarily as soon as heard the song. Even his children used to chide him for this. बच्चे कहते थे पापा क्या करते हैं, इतनी उम्र में आप ऐसे गाने सुनते हैं और साथ में गुनगुनाते हैं। तो वो केस क्रॉकस सटाइवा 30 एक डोज से निकल गया था। ऐसी एक ओशियन का केस था। Similarly, there was a case of obsessive compulsive neurosis, compulsive desire to do something like washing hands repeatedly, to check whether the gas cylinder has been put off or not. Instead of making a long case history and studying other rubrics, only these rubrics helped in giving a single dose of crocus 30, which cured the patient. And I always seeing daily with 30 potency in all cases, I get so good results. If 30 not working, then I go to 6, and 50% cases are cured with crocus, any medicine with 6 single dose. तो ये भी बहुत सारे डॉक्टर जो फॉलो नहीं करते कि कोई नए वालों को हम एक रास्ता दिखा सके पोटेंसी के बारे में, पर मैं देखता हूँ कि सभी ग्रुप्स में कभी कभी वो बहुत क्रोनिक केसेज 6 पोटेंसी सिंगल डोज से निकालते हैं, कभी कभी 30 से सिंगल डोज से निकालते हैं। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करांगा कि आप जरूर एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1 साल के लिए ऐसे करें, स्टार्ट एवरी केस विद 30 सिंगल डोज and then go to 6 single dose, then again to 36. When 36 stops working, then you go 200, 1M, 10M, 50M, CM, then 50 millisiemal 0/1 तो शुरू करके। तो वो भी मैं बोलता हूँ कि मैं 50 मिलीसीमल हमेशा ही सिंगल डोज में देता हूँ, पर हमारे डॉक्टर्स मैं देखता रहता हूँ कि by dissolving globules of 50 millisiemal in water and alcohol and giving repeating for 15 days, for 30 days, तो उसको भी मैंने देखा है सभी केसेस में। जैसे मैं बताता हूँ कि पहला केस मेरा हायोसेम्स का था, बिग ट्यूमर था उस ओल्ड लेडी के नोज पे, तो वो हायोसेम्स 0/1 से 1 डोज से निकल गया था। ऐसी इसके क्रॉकस के और रिमोर्स क्विकली रिपेंट्स में है, रेज रिपेंटेंस फॉलोड बाय रिपेंटेंस में है, केयरफुल अल्टरनेटिंग विद क्वारलिंग में है, जैसे हिस्टेरिकल लड़कियों के केस होते हैं। तो ऐसी लाफिंग अल्टरनेटिंग विद क्वारलसमनेस, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद टेंडरनेस से सिंगुलर हैं सभी। लोकास्टिविटी, माइल्डनेस अल्टरनेटिंग विद हार्डनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका अल्टरनेशन ऑफ स्टेट्स कि गुस्सा किया और फिर पछतावा किया। कितने आप देख रहे हैं केस में अल्टरनेशन ऑफ केसेस हैं। तो ऐसे ये क्रॉकस सटाइवा डेली मैं देख रहा हूं कि 2, 3, 4 केस आउट ऑफ 70-80 क्रॉकस सटाइवा के होते हैं। तो नेक्स्ट एंटीक्रूड कराने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो क्रॉकस सटाइवा पे, जहाँ जिन अप्लाई की है क्रॉकस सटाइवा, मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी है जी, ग्रुप्स में इस पे लेक्चर दिया है क्रॉकस सटाइवा पे। आपने कितनों ने
कितने कॉन्फिडेंस से क्रॉकोस्टैवा अप्लाई की है? काइंडली डॉक्टर जो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन और टेल योर एक्सपीरियंस। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे गाने गाने का बहुत शौक है हाँ, और मैं गाना इजीली गुनगुना सकता हूँ और इजीली मेमोराइज भी होता है, हाँ, तो आई कैन टेक दिस क्रॉकस स्टेटस फॉर माई सेल्फ। पर साथ में रिपेंटेंस वाला सेकंड इम्पोर्टेंट, क्या हाँ है सर, रिपेंटेंस क्विक है? हाँ है सर। हाँ, फिर तो ले ही सकते हैं डेफिनेटली। ओके सर, 30 लेंगे, 30 ना काम करे 6 लेंगे ओके सर। definitely. I am daily seeing 3-4 cases of Crocus-Taiwan in my daily OPD. ओके सर, अभी इसके साथ एक आपके बुक में लिखा है कि नेट्रम सल्फ और सल्फर भी है, नेट्रम और सल्फ। नेट्रम्यूर में है लेट रिपेंटेंस हम लेते है, तो रूब्रिक तो नहीं है डायरेक्ट, पर इंट्रोस्पेक्शन से इन कंपैरिजन टू सल्फर एंड क्रॉकस we have Ignatia and Natrimur. Yes. And I think hundreds and hundreds of cases, in cases we had verified. Late repentance है, म्यूजिक लाइकिंग है, म्यूजिक एमिलियोरेशन है, तो Natrimur है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर। अच्छा तुषार, सर के जीपे में ओके सर, ओके चलेगा डेफिनेटली। ऐसे नहीं है कि सभी केसेस में जो केसेस आपके नहीं निकलते उसमें आप रिपार्टराइज करें, रूब्रिक बनाएं अपनी इंटेलिजेंसी से और फिर वो रिपार्टराइज करें। पर हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि 80% केसेस में हमें सक्सेस मिलती है। एग्जैक्टली। और डॉक्टर नमोले सर किसी से पूछिए। हाँ, और किसी को पूछना है बोलिए, क्योंकि मैं तो क्रॉकस यूज करता हूँ बहुत। ओके, आई यूज क्रॉकस सर वेरी मच। ओके, एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंस मैं करता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर को सीनियर को ये भी होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करनी। नहीं कुछ नहीं होता है सर, करते हैं हम लोग। हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना सर, एक आफ्टर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। हाँ। मैं सर इसमें सिम्फाइटम भी बहुत यूज करता हूँ ये रूब्रिक में। एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंस में अगर रिपेंटेंस बहुत ज्यादा है, बहुत डीप रिपेंटेंस है ना, तो आई यूज सिम्फाइटम आल्सो। आई यूज सिम्फाइटम आल्सो, मतलब वेरी डीप रिमोर्स और छोटी बातें। नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग लाइसेंस एंगर अल्टरनेटिव क्विक रिपेंटेंस, रेज रिपेंटेंस फॉलोड बाय when I read the rubric of license, sympathetic heals the same pain as two brother. Exactly. तो मैंने पंजाब में आपने सुना होगा कि इंसिडेंट हुआ 3-4 महीने पहले, एक गायक था, सिंगर था, सिद्धू मूसेवाला, उसका मर्डर हो गया। बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे रोते रहे, बहुत सारे स्मॉल एज में भी वहां गए, उसके संस्कार पे गए, उसके भोग सेरेमनी पे गए, लास्ट जो था। तो उनको में मैंने रिपेंटेंस क्विक और टू मच सिंपैथेटिक felt as if their own son or their own brother died. I think I have prescribed to 20-30 cases, all cured with license. Oh my God. जिना वो रूब्रिक है ना उसका सिंपैथी वाला, वो हम और केसेस में भी डाल सकते हैं कि इतना सिंपैथेटिक होना दूसरे की सफरिंग को। बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने अप्लाई किया हो? बहुत सारे पुराने डॉक्टर हैं जो दूसरे ग्रुप में हमें मिलते रहते हैं जूम पे, आपने अप्लाई किया हो लेडी डॉक्टर ने? हेलो, किसी ने किया है तो बताइए। अभी करेंगे सर। ओके, बोलने की आदत बनाए, आप टीचर बने और फिर हमें टीच करें। मजा तो फिर है ना।
कि हम स्टूडेंट बन के बैठे हो, मैं डॉक्टर ने बोले सर आप हमें टीच करें, कितना मजा आएगा ना, बाप कितना रे। मजा। हो जाएगा। हम लोग तरस रहे उस दिन के लिए। तो ऐसी मैं जो मेरे दिल को छूती है मेडिसिन वो है एंटम क्रूड, जिससे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। जो डॉक्टर एमएल सहगल सर ने एक्सप्लेन की है कि एंगर टच क्या मतलब है, बीपिंग टच क्या मतलब है, ऐसे नहीं कि फिजिकल टच कर दिया उसको, लव सिक है, तीनों रुब्र का जब हम कंपटीशन कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ऐसे ऐसे केस ठीक हुए हैं कि कमाल ही हो जाती है कि कैसे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी ने भी कोई बात किसी भी रिलेशन दे विच कोई कह दिया, वो उसको बहुत प्यार करता था। वो प्यार यूथ वाला नहीं है कि जो लव होता है, जो जहाँ इग्नेशिया नेट्रेम्यूर देते हैं हम, जो वैसे रिश्तों का प्यार होता है, उसमें एंटम क्रूड से इतने रिजल्ट मिलते हैं कि मैं उसको इतना प्यार करता था, उसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, तो उसने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो रोना बहुत आना, गुस्सा बहुत आना, एंगर टच्ड, बीपिंग टच्ड, तो बहुत सारे केस बहुत इजीली निकल जाते अगर आप पकड़ सके इसको, एंटम क्रूड को, जो डॉक्टर एमएल सहगल सर ने एक्सप्लेन किया है इसका। दो रूब्रिक है, मैं उनकी अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो explanation of touch by Dr. M.L. Sehgal. More important in this context is where feelings or sensitivities are affected. मन को छू गई वो बात, where words and thoughts touch the mind, provoke strong displeasure and desire for retaliation. इतना छू जाती है मन को कि ऐसे कह दिया उसने जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे मदर है, मेरी मदर इन लॉ है, मदर की सिस्टर है, किसी ने भी किसी रिश्ते में भी ब्रदर इन लॉ है, अभी ये क्या चल रहा है। वो कहते मैं तो इतना करता था अपनी मिसेज के ब्रदर का, मेरे को 4 महीने बाद पता लगा कि वो कनाडा चला गया और मेरे को बताया थी कि नहीं सर। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना रोन आ रहा है कि कैसे लोग हैं जी। मैं इतना करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, अपना भाई मानता था उसको, और मेरे को बताया थी कि भी नहीं भी कि वो कनाडा जा रहा है। तो वो एंटम क्रूड से ठीक हुआ। एक प्रोफेसर थे बहुत सीनियर, उसके ब्रदर का डेथ हो गया। उसे पता चला कि उसके ब्रदर की उसके इन-लॉज ने इंसल्ट की थी, पहले घर में से निकाल दिया था। तो जिस भाभी जी को, जिस अपने ब्रदर के बच्चों को वो इतना प्यार से रख रही थी, वो कहती कि मेरा दिल नहीं करता डॉक्टर मान उनको बुलाऊं मैं। जिस रोड पे, जिस सिटी को वो रोड जाती थी, उसके इलाज को, ब्रदर के को, मेरे उस पल देखने को भी दिल नहीं करता। मैं भाभी जी को बिल्कुल बुला रही हूँ। इतना रोए पहली बार। वो कामरेड लेडी थी प्रोफेसर। तो मैंने एंटम क्रूड उनको दी, एंगर टच, बीपिंग टच, लव सिक तो हमें पता था कि इतना प्यार करते थे। तो नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि मैंने भाभी जी को, उनको बच्चों को प्यार दिया, गोद में लिया, और जो मेरा उस रोड पर भी दिल नहीं करता था देखने को, ऐसे मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं आती है। ऐसी एक एडवोकेट थे बहुत सीनियर, वो भी ऐसी रोए रोए मेरे पास, इतने सीनियर एडवोकेट, इतना गुस्से में कि मेरे भाई ने जमीन है जो वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को और को दे दी। मैं 15 साल से उसको ही जमीन देता आ रहा था और बहुत कम दाम पे देता था उसको कॉन्ट्रैक्ट पे, और मैं शराब भी पी रहा हूँ कहते, और मैं बहुत अपसेट हूँ। तो उसको भी मैंने इंक्लूड दी। नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए थे। ऐसी एक और प्रिंसिपल थी मैडम, उसका भी ऐसे हुआ कि वो बहुत गुस्से में, बहुत रोन कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ का इतना करती थी और मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे को ऐसे बोल दिया।
तो वो भी एंटरक्रूड से ठीक हुए। एक थोड़े 2-3-4 महीने पहला एक आया था पर्सन के बहुत अपसेट था। उसकी वाइफ ने बोला ये अपनी मासी जी को अपनी मदर से ज्यादा प्यार करते थे, उसके बेटे को भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी डॉटर अल्लाह ने इनकी इतनी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी और इनकी मासी जी कुछ ना बोले। तो इसके अपसेट होने का कारण ये है कि इसीलिए ये अपसेट है, तो उसको एंटम क्रूड दी, वो ठीक हुआ। ऐसे कितनी ही स्टोरीज है एंटम क्रूड की, जो एंगर टच कहीं आपने कैलकुलेट कर लिया, बीपिंग टच कर लिया, लाभ सिक ले लिया। लाभ मैं फिर बोलता हूँ, मेरे को कभी भी नौजवान जो यूथ है, जो वो लाभ होता है, टूटता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसमें इग्निशिया से तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट लेती हैं, पर कभी उनमें मतलब एंटम क्रूड का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये एंटम क्रूड की स्टोरी है। आपने किसी ने एंटम क्रूड अप्लाई करते हैं जहाँ कोई आपका क्वेश्चन हो? हेलो, हाँ डॉक्टर बोले सर। फ्रेंड्स बोलिए सर, एंटीक्रूड तो हम यूज करते हैं सर, बहुत करते हैं। हाँ जी, बच्चों में भी करते हैं, डायरेक्ट वीपिंग मेथड एंटम में भी क्रूड। करते हैं। हाँ, हाँ, छोटे बनी बच्चों बच्चों में नहीं कभी मैंने यूज की इतनी। मैं किया हूँ सर, वीपिंग में टस्ट में बहुत बच्चों को करता हूँ हाँ हाँ मैं। हाँ दे डोंट लाइक बीइंग टच्ड, दे डोंट लाइक बीइंग टच्ड। हाँ। हाँ, तो उसमें या तो एंटी टैट भी बहुत यूज करता हूँ मैं। अच्छा मतलब अच्छा। किसी को हाथ नहीं लगाने देते, बच्चे खांस रहा है और हाथ नहीं हाँ, लगाने वो देते। टच वाला है जो। हाँ, वो वाला एक करते हैं, बट एल्डरली में तो बहुत बार यूज करते थे। और आपने बहुत सही बताया, हाँ। टीनेजर्स में एंटी फूड नहीं ज्यादा आती है। टीनेज में हम्म। इग्निस या लैकेसिस हाई समझ ज्यादा चलती है। और हाँ थोड़ा हाँ 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 मतलब मैच्योर प्रेम, मैच्योर वाला जो प्यार होता है ना, उसमें ज्यादा एंटी फूड यूज होती है। हाँ 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 हाँ। यंग में तो बहुत ऐसी कम। अलमीना है जो कभी यूज ही हाँ नहीं की थी, ऐसे सोचे नहीं था। एक हाँ। बुजुर्ग मेरे पास आए जब मैं एचएमओ था दूरी में, वो कहते शहर 5 से 5 किलोमीटर दूर उसका विलेज, वो आते ही नहीं शहर, डरते हुए। क्यों डरते थे? कि एक्सीडेंट हो जाए। हम्म तो मैंने उनका वो बेड डिजायर लगाया, फियर फेटल एक्सीडेंट, फिर डिलूजन में भी मिल गई हमें, डिलूजन फेटल एक्सीडेंट। तो हम्म वो के घर में हैं, बेड पे हैं, घर में हैं तो सेफ हैं, तो कहीं एक्सीडेंट। तो इतना हम्म अच्छे रिजल्ट मिले अलमीना से मेरे को। ये डिलूजन वाला, फियर वाला, सिंगुलर उस अलमीना का, और बेड डिजायर के घर में ही रहे तो ठीक है, सेफ है भैया, शहर में हम्म जाए। हम्म फिर एक अभी भी आता है अपनी वाइफ को लेके, इतने साल हो गए, शायद कम से कम मैं दूरी में था उस समय 95-96 में। वो स्कूटर का मैकेनिक था हरवंश सिंह, वो स्कूटर रिपेयर कर देता था और चला के हम्म ट्राई लेके नहीं देता था, छोड़ देता था कि आप ले जाओ जहाँ, मैं ट्राई नहीं ले सकता। इतना उसके मन में फियर एक्सीडेंट था। तो उसके भी फिर मैंने यही अलमीना दी और वो विद इन ए वीक ठीक हो गया था। फिर वो स्कूटर रिपेयर करता और फिर वो उसकी ट्राई लेता था। तो ऐसी एक नर्स थी, वो कहती मैं तो 25-30 किलोमीटर से स्पीड पे ही स्कूटर चलाती हूँ। हम्म उनको प्रॉब्लम कोई और थी, तो फिर भी ज़रूर के यही बनाया। अभी मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम कोई भी है, पता नहीं कैसे ठीक करती है वो। अगर मेरे को केस हिस्ट्री लेते लेते फियर एक्सीडेंट, डिलूजन फेटल एक्सीडेंट, तो अलमीना देते हैं और वो केस ठीक हो जाते हैं, ठीक निकल जाते हैं। तो अलमीना से भी मैंने ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए एक्सीडेंटल वाले केसेस में। और सिंगुलर रूब्रिक है जी, ऐसे जी मेडिसिन इतना अच्छा काम करती हैं कि प्रेस्क्राइब करने में भी मजा आता है। ऐसी इलेप्स है, इलेप्स में डर होता है कि कहीं कोई ऐसा चोर चक्का ना घर में आ जाए। अकेले हम्म रहने से इतना डर लगता है उसको कि कहीं
अगर अकेली रहेगी नहीं रहेगी तो कुंडी वगैरह लगा के, लॉक लगा के अंदर से, और फिर वो रह सकेगी। तो उसको है कि डीलूजनल राउडीज डिसऑर्डरली पर्सन सिंथेसिस 5.2 में ब्रैकेट में दिया है, वुड अपीयर एंड इफ शी वर अलोन। ऐसी कंपनी में है कि एक उसको कैन नॉट रिमेन अलोन। तो वो एक लेडी आई, इतना डरती थी वो, और मैंने देखा कि कैसे वंडर्स करती हैं होम्योपैथी, और मैंने उसको इलेप्स दी, और वो लेडी अपने आप रात को खेत एक डग लेती, सोटी अपने पास, और चक्कर लगा देती सी कोठी का, डरना तो क्या उसमें। ऐसे कितने और केस फिर हुए। तो एलेपस से जहां भी मेरे को मिला हिस्ट्री लेते लेते कि अकेले रहने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि कहीं कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए जो उसको फिजिकली भी अब्यूज कर जाए, तो वो डर उसका होना। तो वो लैपस से इतने केसेस निकले हैं लैपस से, और ठीक भी होते हैं। ऐसी अगर देखें हम स्मॉल मेडिसिन जो लारोसरेसिस हैं, गेस्ट टेकिंग करते हैं, एंड में डॉक्टर बोलती है कि सर एक्चुअली में मेरे को बहुत गुस्सा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये बात नहीं की, मेरे पे इल्जाम लगा दिया मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने और फैमिली वाले ने। तो मेरे को इस बात का गुस्सा है, मैं इसीलिए रात को सो नहीं पाती, इसीलिए अपसेट हूँ। तो वो रूब्रिक बनाते हैं हम अक्यूज सी कि मेरे को दोष दिया जाता है। एंगर मिसअंडरस्टूड, इतना इजी है कि मेरे को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, मैंने तो ये कहे ही नहीं ना सर, ये तो गलत इन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो वो लारोसरेसिस से इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे जो ये बुक में दिया हुआ है ना, ये तो बहुत हमने प्रूव किया हुआ उसमें दिया है। आपके रियली 80% केसेस इसमें से निकल सकते हैं। अगर देखेंगे आप, जैसे चाइल्ड की बात चल रही थी, मैं देखता हूँ इतना इजी डीडी है। पेशेंट से पूछते हैं बच्चे के इंजेक्शन से कितना डरता है, बहुत डरता है जी। अगर तो वो दौड़ गया, इट मीन्स फियर बीट रेट है, कहीं इंजेक्शन लगा ना दे डॉक्टर साहब। अगर वो मम्मी और पापा को क्लिंक को साथ चिपक गया, हमारी तरफ उसने बैक भी कर दी, उसको ऐसे नहीं कि मेरे साथ फियर बीट रेट के इंजेक्शन लगा देंगे, तो उससे पता चल जाता है। फिर हम कंफर्म करके लिए हायोसेम्स का फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग बोथ, फियर डार्क पहले नहीं था हायोसेम्स में, लेटर ऑन ऐड कर दिया हायोसेम्स फियर डार्क में, पर उसमें बहुत मार्केट है जे स्ट्रामोनियम में हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने पूछता है, मैं पूछता हूँ पेशेंट के बच्चे मदर फादर में, सर इतने क्वेश्चन पूछता है जे हम तो तंग आ जाते हैं जवाब देते देते। तो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, फियर इंजेक्शन, फियर डार्क, तो दूसरा है जो है अपना इनक्विजिटिव, तो है समझा जाता है नेवर फेल, आई थिंक नेवर फेल। तो स्ट्रामोनी में फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, फियर डार्क ऑफ एंड क्लिंगिंग टू पर्सन, तो वो स्ट्रामोनियम से निकल जाता है। इतना इजी है ना, मेरे को तो बहुत साइकिल सिस्टम इतना इजी लगता है। अगर वो आराम से लेटा हुआ है, पहले बच्चा खेलता रहता है, फिर अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रेपिटेशन, बुखार हुआ 99, 100, 101, 102, 103, आराम से लेट जाएगा। अगर पानी लेना है उठ के ले लेगा, कोई बास बेसन पे जाना है, वॉमिटिंग आ गई उठ के चला जाएगा। मम्मी को पापा को बिल्कुल तंग करता, जब बुखार उतर गया फिर प्लेफुल हो जाता है। तो कॉकुलस देते हैं हम, कभी भी फेल नहीं होती है उसकी कॉकुलस है जो। बेलाडोना वाला इंजेक्शन की बात करते हैं, लाफिंग स्माइलिंग, अंकल लगा दो, हाँ कोई बात नहीं लगा दो, तो वो बेलाडोना आ जाता है। और कॉकुलस को जब पूछते हैं वो कहता है अगर अंकल जरूरत है तो लगा दो, कोई बात नहीं, वही रिकॉग्नाइज वाली बात आ जाती है, तो कॉकुलस से निकल जाता है। ऐसी जेलसीमियम वाला वो टू क्लिंगिंग टू मदर है,
जैसे कॉकुलस वाला केला लेट जाएगा ना, जैलसीमियम वाला बोलेगा कि मम्मा पकड़ के उसको गोद में लेके रखे, अगर मम्मा किचन में जाते हैं तो मेरे को साथ ही लेके चलो। तो वो कहेंगे कि मादर इतना ज्यादा है, क्वाइट बॉन्ड्स 2 है, डिस्टर्ब वर्जन 2 है, तो वो जैलसीमियम से निकल जाते हैं ऐसे। तो इलेप्स का किसी ने पूछा था, एक तो डिलूजन के अंडर है, डिलूजन रॉडीज, RODIDIES, डिलूजन रॉडीज would appear in if she were alone। एक जे है, एक कंपनी के नीचे है, मैं देख के बोल देता हूँ आपको रूब्रिक जो उसका अंडर कंपनी है। हाँ, तो कंपनी का है, कंपनी डिजायर फॉर happen as if something horrible might happen, as if something horrible might alone aggravation by को उसको लगता है कि बहुत कोई भयानक कोई डिसऑर्डरली पर्सन आ जाएगा, सिंगुलर है, कंपनी डिजायर फॉर हैपन एज इफ समथिंग हॉरिबल माइट, तो वो इसलिए इलेप्स आ जाती है। डिलीज तो हाई, डिसऑर्डरली पर्सन वुड ब्रेक एन इफ शी वर अलोन, फियर रॉबर्स, फियर सॉलिट्यूड, डिलीजन टॉकिंग ही हियर्स के कहीं वो लोग बाहर खड़े बातें कर रहे हैं, ये सभी को साथ है इसका, है ना। तो इससे जो रूब्रिक है इसके, जो एक कंपनी नीचे देखेंगे आप, कंपनी डिजायर फॉर हैपन के नीचे, और दूसरा डिलूजन रॉडीज है, फियर रॉबर्स है, फियर सॉलिट्यूड है, डिलूजन टॉकिंग ही हियर्स के बातें कर रहे हैं, उसको ऐसे लगता है। तो इतना इन बातों से हमें इजी लगती है होम्योपैथी। डॉक्टर सहगल सर का हमारा सिर्फ सल्यूट करते हैं उनको हम, कि कैसे कैसे इतना इजी बना दिया इसको, होम्योपैथी को। कॉकुलस, हम गुड नर्स तो जानते कि गुड नर्स है, कॉकुलस है, आयरलैंड में से पहली DHMS फर्स्ट ईयर से स्टडी करते थे, पर जो रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्टेड बनाया ना सारे, उसका सेंट्रल, कहीं हम वहां पर पहुंच गए, अगर 50 डॉक्टर हैं तो 50 ही कॉकुलस देंगे। वो बोलेगा क्या फायदा सर बोलने का, एक कहेंगे 4 कहेंगे, मैं एक बोलूं वो और 4 कहेंगे, ऐसी कोई भी एग्जाम्पल वो दे सकता है। 5 करें 50 करें बच्चे, अब उनको उन पर छोड़ दिया है, मैं कोई दाखिल नहीं देता, जो भी काम है उनका। और रात को फिर हम कंफर्म करने के लिए कॉकुलस में पूछते हैं कि अगर रात को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको पानी चाहिए, आपको टेबलेट चाहिए, आपको चाय चाहिए, क्या आप वाइफ को पूछते हैं कि आप क्या हस्बैंड को उठाते हैं, हस्बैंड से पूछते हैं क्या आप वाइफ से उठाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर। मैं कह देता हूँ क्या डरते हैं, वो कहते हैं नहीं, डरने की बात नहीं है, वो सारा दिन काम किया है उन्होंने, वो थके हुए हैं, वो क्यों डिस्टर्ब करना है सर उनको, मैं अपने आप ही मैनेज कर लेती हूँ ना, मैं अपने आप ही मैनेज कर लेता हूँ, मैं कभी वाइफ को नहीं तकलीफ देना चाहता, वो सारा दिन काम करती है घर का, मैं उठकर पानी लेता हूँ, टेबलेट ले लेता हूँ, चाय की जरूरत है चाय ले लेता हूँ। तो वो इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलते हैं कॉकुलस से, इतना ब्यूटीफुल। पहली बार डॉक्टर सहगल ने एक्सप्लेन किया है फियर एक्स्ट्रावेगेंस। किसी ने अगर किया हो तो मेरे को बता दे कि इन रिलेशन टू मनी को कंसिडर करते थे इसको, कि मेरी पॉकेट इतना अलाउ करती है,
पर इन रिलेशन टू डिजीज इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। हम पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, ओके कितने दिन से है, इतने दिन से है, क्या दवाई ली, कोई नहीं ली, क्यों नहीं ली, परवाह नहीं की, आज क्यों बढ़ गई। इतना इजी है भैया, इतना इजी है कि आज प्रॉब्लम बढ़ गई, कोई मेडिसिन नहीं ली, इंडिफरेंट टू सफरिंग, हियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ होम्योपैथी, वही बेलाडोना वाला पार्ट आ जाता है। होम्योपैथी क्यों, किसी रिलेटिव ने बोला कि होम्योपैथी ठीक कर देगी, डॉक्टर मान ठीक कर देंगे, तो आपके पास आया हूँ। तो वो शुरू में भी ऐसे हो जाता है, और मेडिसिन खा रहा है, किसी की लिमिट 7 दिन की है, किसी की 7 महीने की है। कोई पेशेंट आफ्टर 7 मंथ भी कह सकता है कि सर इतनी देर हो गई, अब मेरे को खाते हुए मेडिसिन 7 महीने उस इंडिफरेंस रहा। तो वहां भी हम फियर एक्स्ट्रावेगेंस बनाते हैं और ओपियम देते हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट जे मिलते हैं। तो कोई इनमें से कोई और किसी का क्वेश्चन हो डॉक्टर नमोले सर? सर आपका किसी पाइपरमेथ का का कोई क्या एक्सपीरियंस क्वेश्चन है? हो? पाइपरमेथ का क्या एक्सपीरियंस है आपका? पाइपरमेथ का कोई एक्सपीरियंस है आपका? पाइपरमेथ का कोई एक्सपीरियंस है सर आपका? एक्स्ट्रावेगेंस का पाइप नहीं, पाइपरमेथ हाँ। पाइपरमेथ का कोई एक्सपीरियंस है क्या? मेडिसिन कैसे, मैं समझ नहीं रहा। पाइपरमेथ ये रेमेडी का कोई एक्सपीरियंस है आपका? वो एंटरटेनमेंट सेमुलेट्स वाला पाइपरमेथ। हाइपेरिकम का बोल रहे हैं आप? पाइपर पाइपर पाइपरमेथ में लिखा हो, देखो सर इस पे पाइपरमेथ। पाइपर मैथ नहीं तो रिजल्ट नहीं मिले। अम्यूजमेंट डिजायर में है, एक्साइटमेंट मिलियोरेशन में है, एंटरटेनमेंट मिलियोरेशन है, दी है, पड़ी भी है क्लिनिक पे 36 बानम, पर मेरे को नहीं कभी रिजल्ट मिले। हाँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं आपको मिले मिले सर, हो, मुझे भी नहीं किसी मिले और डॉक्टर को मिले हो, बता। मुझको नहीं मिले सर पाइपरमेथ के रिजल्ट अभी, बहुत कम। हाँ, मेरे को भी नहीं कभी भी मिले है ना। हाँ बहुत क्लियर कट अम्यूजमेंट डिजायर, एंटरटेनमेंट मिलियोरेशन, हाँ एक्साइटमेंट मिलियोरेशन होता है, पर रिजल्ट नहीं कभी मिले। हाँ एग्जैक्टली, मुझे नहीं मिले। हाँ हाँ ओपीएम के तो बहुत है सर, ओपीएम तो हाँ, ओपियम तो ओपियम, कॉकुलस, बेलाडोना, हायोस, ठा, सल्फर, क्रॉकस, इग्नेशिया, नाइट्रम्यूर, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मतलब सभी से। एक्स्ट्रावेगस में तो मैंने सुना, जैसे फीवर के लिए पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, वो 2 दिन बाद आके बोलेगा सर 2 हाँ दिन हो गए देखो अब तक ठीक नहीं हो रहा है, और 3 दिन हो गए देखो हाँ, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। मतलब वो ऐसा वक्त बिल्कुल देने लगता है, बिल्कुल, वो तो सर 2 दिन हो गए देखो। हाँ हाँ, अपनी अपनी लिमिट है हाँ ना, किसी की 2 दिन की हाँ, है, किसी की 7 सर दिन फीवर को है। 4 दिन नहीं लगना चाहिए सर, देखो ना ऐसे बोलते हैं। हाँ इतना हाँ हाँ, सर, सर्दी को सर इतना खर्चा नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। सर सर्दी तो है, इतना खर्चा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये एक्स्ट्रावेगेंस का तो है। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर नमोले सर, क्या चौथ में बहुत कुछ हो गया? जी सर। अब हमारी लेडी डॉक्टर को खाने दीजिए कुछ। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। It ओके has been जी, very kind, and I ओके should जी, thank थैंक यू madam जी, also. थैंक I यू should फॉर thank कॉलिंग madam मी ऑन also for करवा allowing चौथ। me. नहीं, and special thank to Man madam actually for allowing sir to give us the lecture today. And all the ladies जिन लोगों ने करवा चौथ का उपवास किया, सभी महिलाओं को सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया, और आप करवा चौथ का उपवास करती इसलिए भी शुक्रिया। सर, ओके और थैंक यू वेरी मच ओके जी, मान सर, इट इज ओके, ऑलवेज अ थैंक यू प्लेजर, वेरी मच, एंड ओके ओके ऐसा लगता है आपको सुनते रहे सर, बस मजा आता है माशाल्लाह। थैंक यू, ओके थैंक यू ऑल द टीम। एंड ओके ओके मान सर की ओके बुक जी, अगर चाहिए तो मैं आपको मान सर वो ये देता हूँ। कुछ लोगों ने इंक्वायरी की थी सर बुक के लिए, तो आई विल गिव डॉक्टर मान्स नंबर। मैं अपने ग्रुप में डॉक्टर मान का वो नंबर देता हूँ जहाँ पर किताब मिलती है, होम्योपैथी एंड माइंड। तो टू ऑल द व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब वीडियो पर आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर हम मान सर की बुक कहाँ मिलती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। ये आज का लेक्चर हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे कल तक इंशाल्लाह।
तो सभी लोग यूट्यूब पे इग्नाइटेड माइंड्स बाय पीएचएफ के ग्रुप में जाकर देखें, और एएसआरएच में और हमारे इग्नाइटेड माइंड के टेलीग्राम ग्रुप में भी हम मान सर का नंबर डालेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, Yes, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस।